Good morning, class. So, am I audible to you all? Yes, sir. Okay. Okay, thank you. So we'll be starting with the so we'll basically continuing with what we were discussing in the last class. That was the properties, right? The properties of water. So in that we have seen the physical properties, and we were discussing the chemical properties, and then we'll have to discuss the biological properties. So we have already discussed the physical factors, physical properties. Now we will be discussing the chemical properties, right? Some of the chemical properties like acidity, hardness, and pH, we have already seen that, and some of them were remaining. So I'll be discussing that in today's class. Okay, so I'll directly come to the presentation. Okay, here. So can you see this presentation on chloride? Is it Yes, visible? sir. Okay, thank you. So, so we have already discussed pH, alkalinity, hardness, and all. So next chemical property is chloride, right? So it is very very important. We also have a test, लेबोरेटरी टेस्ट ऑन क्लोराइड. ठीक है, अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्लोराइड हम क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं वाटर में, इसको देख लेते हैं. High chloride contents in rivers and stream indicate pollution in water, right? If there is high chloride content in river or water in the stream, then it indicates pollution in water, right? Due to sewage or industrial waste. So if there is chloride in water, you can directly relate that there is a pollution in the water due to sewage or due to industrial waste. ठीक है, ये डायरेक्ट इसका आप इंडिकेट कर सकते हो कि इसमें पॉल्यूटेड है वाटर इफ देयर इज हाई क्लोराइड प्रेजेंट. ठीक है, क्लोराइड कंटेंट कैन बी डिटेक्टेड बाय titrating water with the standard silver nitrate solution with potassium dichromate as indicator. ठीक है, ये आपका लेबोरेटरी टेस्ट है, आप टाइट्रेशन मेथड यूज करते हो wherein you use the standard silver nitrate solution और उसको potassium dichromate as an indicator से आप यूज करते हो उसको. ठीक है, the solid precipitate of silver chloride AgCl will be obtained. So solid precipitate जो होता है वो AgCl के फॉर्म में, सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में ऑब्टेन होता है. सो क्लोराइड मतलब अगर आप लोग निकालोगे उसमें टेस्ट करोगे, सो यू विल कम टू नो दैट देयर इज अ पॉल्यूशन इन वाटर, राइट? ये डायरेक्टली आपका पॉल्यूशन लेवल बताएगा. सो ये परमिसिबल कितना होता है, जैसे मैं सबको परमिसिबल लिमिट बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Permissible chloride content in drinking water should be less than 250 mg per liter. So you should always ensure before supplying the water that the chloride content should be less than 250 mg per liter. And for ensuring that, you will have to do this. मेरी क्लास हो रही है, इसके देख रहा हूँ. Shalini, can you please turn off your mic? Okay, so there was a disturbance. Okay. So am I audible now? Voice is clear? Yes, sir. Okay, thank you. So next is nitrogen content, right? After chloride we have nitrogen. अब देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, राइट? सो अगर नाइट्रोजन आपके उसमें मिलती है वाटर में, देन इट इंडिकेट्स ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में, राइट? एंड इट में अकर इन फोर फॉर्म्स. अब नाइट्रो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो चार तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया, और फ्री नाइट्रोजन भी हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक अमोनिया, एल्यूमिनॉइड,
नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, इन 4 फॉर्म में ये मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा गेट वगैरह में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कंटेंट मतलब आप कैसे ऑर्गेनिक मैटर का कैसे पता लगाओगे वाटर में। तो आप बता सकते हो कि इन 4 फॉर्म्स में अगर आपको नाइट्रोजन मिलती है, अमोनिया की फॉर्म में ऑर्गेनिक अमोनिया या फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट, इस फॉर्म में अगर वाटर में मिलता है तो इसका मतलब है कि आपका ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, बट अब ये 4 तरीके के हैं। हाउ कैन वी कम टू नो कि किसका क्या चीज क्या सिंबलाइज करती है या क्या चीज से क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसका, है ना। तो ये देख लेते हैं हम शॉर्ट में। तो अगर फ्री अमोनिया है, अगर आपको फ्री अमोनिया मिल रहा है इसमें, तो किस तरीके का ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे? इट्स प्रेजेंस इंडिकेट्स रीसेंट पॉल्यूशन। ठीक है, जो बिल्कुल ताजा ताजा पॉल्यूशन हुआ हुआ है। ताजा पॉल्यूशन मतलब कि बिल्कुल अभी अभी पॉल्यूट हुआ है वाटर। ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट होंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे आप उसको आप निकाल सकते हैं फ्री अमोनिया से। So the presence, its presence indicate recent pollution, which is because of influent from excrement from animals and human। ठीक है, तो जो ह्यूमन और एनिमल के एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, वो अगर वाटर में मिल जाए तो ठीक है, उससे उसका वो क्या करेगा, वाटर को पॉल्यूट कर देगा, राइट। Its presence can be measured by simply boiling the water and measuring the liberated ammonia। आप क्या करोगे, सिंपली इसका टेस्ट कैसे कर सकते हो? आप वाटर को बॉईल करो, उससे जो भी अमोनिया होगा, जो लिबरेट होगी अमोनिया, उसको आप मेजर कर लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा फ्री अमोनिया कितना है। अगर फ्री, इट शुड नॉट बी मोर देन 0.15 mg पर लीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट। 0.15 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्री अमोनिया। अगर इससे ज्यादा है तो वोमिट नहीं किया जाएगा वाटर में। ठीक है, और अमोनिया अगर आपको मिल रहा है दैट मीन्स, फ्री अमोनिया अगर मिल रहा है तो दैट मीन्स देयर इज अ रीसेंट पॉल्यूशन इन वाटर, राइट। उसी तरीके से आता है ऑर्गेनिक अमोनिया। ऑर्गेनिक अमोनिया क्या होता है? इट इज मेजर्ड बाय बॉइलिंग अ सैंपल विद एडिशन ऑफ KMnO4। ठीक है, विच इज ऑलरेडी बॉइल्ड। तो ये हम लोग इसमें बॉइलिंग तो करते हैं, बट इसमें एडिशन किसका करते हैं? KMnO4 का। द लिबरेटेड अमोनिया इज एल्ब्यूमिनॉइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जो ये अमोनिया लिबरेट हो रही है इसके साथ KMnO4 के साथ, उसको एल्ब्यूमिनॉइड बोलते हैं। ठीक है, if KMnO4 is added in cold water and then it is boiled, then free ammonia and organic ammonia both will be liberated। तो अगर आप जो है बॉइलिंग सैंपल में KMnO4 को डालोगे, ठीक है, तो जो अमोनिया निकलेगी उसको एल्ब्यूनॉइड बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप KMnO4 को कोल्ड वाटर में अगर आप डालते हो, है ना, और फिर उसको आप बॉइल करते हो, तो फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया दोनों, फ्री अमोनिया ये है ऊपर जो हमने डिस्कस किया था। एक मिनट, ओके। तो फ्री अमोनिया हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये है हमारा ऑर्गेनिक अमोनिया। तो आपको दोनों मिलता है, फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया बोथ विल बी लिबरेटेड। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं जेडाल नाइट्रोजन। ये टर्म आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया है पहले भी एग्जाम में। मतलब सिंपल जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, या फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें काफी ज्यादा मतलब एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कि ये जेडाल नाइट्रोजन क्या होता है। जेडाल नाइट्रोजन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है किसका? फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया दोनों जब लिबरेट होती है। कब? जब आप KMnO4 को कोल्ड वाटर में ऐड करते हो, तो उसको बोलते हैं जेडाल नाइट्रोजन। ठीक है, के साइलेंट होता है उसमें, जेडाल नाइट्रोजन। ठीक है, द ऑर्गेनिक अमोनिया शुड नॉट बी मोर देन 3 mg per liter in drinking water। So for drinking water the permissible limit is only 3 mg per liter, it should not exceed this limit। तो ये आप इंश्योर करते हो। So this is your organic ammonia। Next is your nitrite। ठीक है, अब 2 चीज होती है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्राइट क्या होता है? इट इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, नाइट्राइट अगर वाटर में है तो इट इज वेरी हार्मफुल। इट्स प्रेजेंस इन ड्रिंकिंग वाटर इज निल, इट शुड बी निल। मतलब नाइट्राइट तो आपके पानी में होना ही नहीं चाहिए। अगर नाइट्राइट है तो वो बहुत हार्मफुल है। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक्स। कैसे मेजर कर सकते हैं? कलर मैचिंग टेक्निक्स होती है। द कलर इज डेवलप्ड बाय सल्फोनिक एसिड एंड नेप्थलमाइन। ठीक है, तो कलर किसकी वजह से होता है? सल्फोनिक एसिड और नेफ्थमाइन जो होता है इसमें, उसकी वजह से आपको कलर डेवलप होता है। और कलर मैचिंग टेक्निक से आप लोग पता लगाते हो कितना नाइट्राइट इसमें है। ठीक है, तो ये भी टेस्ट होता है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वाटर में कितनी नाइट्राइट की क्वांटिटी प्रेजेंट है। सो नाइट्राइट में अराइज ड्यू टू बायोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बाय एडिशन ऑफ अमोनियम कंपाउंड। तो किस वजह से हो सकता है? बायोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक मैटर को ही हम लोग नाइट्रोजन, मतलब अगर कोई भी अमोनिया या नाइट्रोजन हम लोगों के पास यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन कंटेंट, तो ये क्या प्रेजेंस किसकी बताता है? ऑर्गेनिक मैटर की बताता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बाय एडिशन ऑफ अमोनियम कंपाउंड और ड्यू टू रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स।
अगर नाइट्रेट कम हो जाए, नाइट्रेट नहीं है नाइट्रेट, नाइट्रेट कम हो जाए वाटर में तो भी वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से नाइट्राइट अराइज हो सकता है, उसमें वाटर में मिल सकता है आपको। स्मॉल ट्रेसेस ऑफ नाइट्राइट रिप्रेजेंट presence of pollution and nitrite has high affinity with hemoglobin to replace oxygen। तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है अगर स्मॉल ट्रेसेस मिलते हैं नाइट्रोजन के वाटर में, तो उसका मतलब है कि वाटर आपको पॉल्यूटेड है। एंड नाइट्राइट हैज अ हाई एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन टू रिप्लेस ऑक्सीजन। और ये हीमोग्लोबिन मतलब वो ब्लड से आपका ऑक्सीजन भी रिप्लेस करता है ना, हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है। तो ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है नाइट्राइट अब, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट जो है ये अडल्ट्स में बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, बट ये इन्फेंट्स में, बच्चों में बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। नाइट्रेट इसको देख लीजिए, इट इज नॉट मच हार्मफुल एट इट इज फुली ऑक्सीडाइज। तो नाइट्रेट जो होता है पूरी की पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, बट इट्स लार्ज क्वांटिटी में अफेक्ट इन्फेंट्स। तो जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स हैं उनको नाइट्रेट नाइट्रेट जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। इट्स कंसंट्रेशन इज मेजर्ड बाय कलर मैचिंग टेक्निक्स, फिर इसको भी हम कलर मैचिंग टेक्निक से करते हैं। एंड द कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय फिनोल डाइसल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसमें फिनोल डाइसल्फोनिक एसिड की वजह से कलर प्रोड्यूस होता है। द एक्सेस प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट में कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट्स। तो ये बीमारी का नाम नोट कर लीजिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है और जनरल स्टडीज क्वेश्चन भी पूछा जाता है जीएस वगैरह में कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस वजह से होता है। तो ये किस वजह से होता है, अगर वाटर में आपका नाइट्रेट प्रेजेंट हो तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इस बीमारी का नाम है। इसमें स्किन ब्लू टर्न हो जाती है बच्चों की, ब्लू कलर की होने लग जाती है, ब्लूइश कलर की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, आगे से याद रखिएगा। ये नाइट्रेट की वजह से होता है, अगर वाटर में नाइट्रेट होता है तो बच्चों में ये बीमारी हो सकती है ब्लू बेबी सिंड्रोम से, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मिथेनोग्लोबिनिया, ठीक है। ये नाम भी आप याद कर लीजिएगा, इसी को बोलते हैं मिथेनोग्लोबिनिया। तो ये जीएस में काफी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, मतलब ये जनरल नॉलेज में भी आपके आता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम मैंने देखा है और भी एग्जाम्स में पूछा गया है इसमें। तो किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं है नाइट्रेट है, इसकी वजह से होता है। एंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर इट शुड नॉट बी मोर देन 45 mg पर लीटर। इसकी क्वांटिटी 45 mg पर लीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए नाइट्रेट, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा क्लोराइड और अमोनिया या फिर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और हमने फ्लोराइड्स देख लिए। नेक्स्ट हमारे आती केमिकल प्रॉपर्टी फ्लोराइड्स, जो केमिकल हमारे प्रेजेंट है फ्लोराइड। अब देखिए फ्लोराइड भी बहुत मतलब इस तरीके का सब्सटेंस है जो कि वाटर में मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में होना जरूरी है। अगर ये कम है तो भी दिक्कत है और ये ज्यादा है तो भी दिक्कत है, ठीक है। देख लीजिए क्या होता है। और ये काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो फ्लोराइड की दिक्कत, जैसे यूपी में अपने इलाका सुना होगा बलिया है, और भी कुछ कई सारी जगह है, राजस्थान में कई सारी जगह जहाँ पर फ्लोराइड की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वाटर में बहुत ज्यादा फ्लोराइड का कंटेंट है ना। उसमें काफी ज्यादा स्टडी चल रही है कि कैसे हम फ्लोराइड को रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो देख लेते हैं फ्लोराइड में क्या होता है। फ्लोराइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ हेल्दी टीथ एंड इट्स परमिसिबल लिमिट इज 1 to 1.5 mg पर लीटर। देखिए इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी देखिए, 1 से लेके 1.5, मतलब कि 1 से कम भी नहीं होना चाहिए और 1.5 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगेन ये चीज आप ध्यान से नोट कीजिएगा, बिकॉज ये फिर से पूछा जाता है कि फ्लोराइड की लिमिट क्या होती है, कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। सो यू शुड नो, बायो वगैरह में पूछा जाता है। सो यू शुड नो दैट फ्लोराइड्स लिमिट इज 1 to 1.5 mg, मतलब 1 से नीचे भी नहीं होना चाहिए, 1.5 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, फंक्शनिंग ऑफ हेल्दी टीथ लिखा है ना इसमें, इसका क्या रिलेशन है, फ्लोराइड का ज्यादातर आपका रिलेशन होता है टीथ एंड बोन से, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। If fluoride is less than 1 mg per liter, then it will cause dental cavities, ठीक है। तो अगर 1 से नीचे आता है तो डेंटल कैविटीज होने की चांसेस हैं, आपके दांत में कैविटीज हो जाएंगी। एंड फ्लोराइड इज मोर देन 1.5 mg, देन इट विल कॉज फ्लोरेसिस। फ्लोरेसिस को क्या बोलते हैं, और डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। तो आपके टीथ का जो है वो डिस्कलरेशन होने लगेगा, आपके दांत जो है व्हाइट नहीं रहेंगे, वो अलग कलर के हो जाएंगे ना, ब्राउन, येलोइश ब्राउनिश इस तरह वो कलर चेंज करने लगेंगे अगर फ्लोराइड 1.5 से ज्यादा है। तो 1 से नीचे है तो डेंटल कैविटी होंगी, 1.5 से ऊपर है तो डिस्कलरेशन होने लगेगा टीथ का। तो ठीक है, तो ये बहुत मतलब इस तरीके का है कि इसको आपको लिमिट में रखना पड़ता है। ये ना तो 1 से कम होना चाहिए, ना 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, आपके लिए दोनों कंडीशन खतरनाक है। बट अगर आप देखोगे जो मैंने आपको इलाके बताए थे यूपी के राजस्थान के, तो वहां तो 3-4 तक का mg पर लीटर तक का फ्लोराइड है उसमें पानी में,
और सोचो आप लोग वो पानी लोग पीते हैं, उसकी परमिसिबल लिमिट 1 to 1.5 है सर, है ना। तो बहुत बड़ी समस्या है, इस पे काफी रिसर्च चल रहा है, कई टेक्निक्स हैं जिससे हम फ्लोराइड रिमूव करते हैं, बट अभी भी मतलब काफी ऐसी टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं जिससे फ्लोराइड को रिमूव किया जा सकता है वाटर से, राइट। इसलिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन फ्लोराइड्स पे। आपको यूट्यूब में तो पता नहीं कितना पूछा जाएगा, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फ्लोराइड्स पे जरूर पूछा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉटलिंग। मॉटलिंग किसे बोलते हैं? डिस्कलरेशन ऑफ टीथ को, ठीक है। ये हो जाता है आपको when fluoride is more than 5 mg per liter, then it may cause deformation of bone, which is called bone fluorosis. तो अगर 5 mg per liter से भी ज्यादा हो जाए तो आपको क्या हो सकता है? बोन में भी डिके होने लग जाता है, डिफॉर्म होने लग जाती है बोन्स आपकी, विच इज कॉल्ड बोन फ्लोरोसिस, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, 5 mg पर लीटर से ज्यादा होगा तो बोन को भी अफेक्ट करने लगता है फ्लोराइड, ठीक है। तो ये भी आपका लिमिटेड होना चाहिए, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए फ्लोराइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी? नेक्स्ट पैरामीटर है, ये भी केमिकल पैरामीटर ही है, फॉस्फोरस, ठीक है। और फॉस्फोरस क्या है? इट इज नाइदर टॉक्सिक नॉर हार्मफुल, ना तो ज्यादा टॉक्सिक है ना हार्मफुल है, बट इट इंडिकेट्स द फ्यूचर पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल बॉडीज। अगर आपके उसमें फॉस्फोरस मिलता है वाटर में, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आगे चल के इस वाटर में ये पानी पोल्यूट होने वाला है, मतलब इसमें एक्टिविटी शुरू हो गई कि ये पोल्यूट होने लग गया है वाटर, ठीक है। तो ये अर्ली जो है फ्यूचर पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल बॉडीज बताता है। मतलब अगर उसमें फॉस्फोरस आपको मिलेगा तो ज्यादा टॉक्सिक या हार्मफुल तो नहीं होगा, बट आप पता लगा सकते हो कि पॉल्यूशन इसमें होने वाला है, वाटर पॉल्यूट होने वाला है जाके, इसमें मतलब इसमें जो रिएक्शन है वो शुरू हो गई है पॉल्यूशन। इट फैसिलिटेट्स द रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। इसकी वजह से क्या होता है? रैपिड ग्रोथ होती है एक्वेटिक प्लांट्स की, लाइक एल्गे विच में पॉल्यूट वाटर इन नेचुरल सिस्टम। फॉस्फोरस ऑल्सो इन्फर्स विद केमिकल कोagulation, ठीक है। कभी केमिकल कोagulation आपने अभी पढ़ा नहीं है, जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो कोagulation क्या प्रोसेस होती है वो मैं तब आपको समझाऊंगा। तो ये फॉस्फोरस जो है ये केमिकल कोagulation भी नहीं होने देता, उसमें इंटरफेरेंस करता है, ठीक है। केमिकल कोagulation में आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या होता है केमिकल, जब हम वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कोagulation क्या होता है। तो क्या है, अगर फॉस्फोरस मिलता है तो इससे क्या होता है? रैपिड ग्रोथ होने लगती है एक्वेटिक प्लांट्स की, एल्गी वगैरह काफी लगने लगता है। आपने देखा होगा कई सारी जगहों पे पानी पे एल्गी वगैरह लगा रहता है, राइट। तो इससे क्या होता है? वाटर पॉल्यूट हो जाता है, और तो ये भी नहीं होना चाहिए ज्यादा फॉस्फोरस। आई मीन फॉस्फोरस इंडिकेट करता है कि फ्यूचर पॉल्यूशन होने वाला है इसमें नेचुरल बॉडी वाटर में। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका केमिकल में आयरन एंड मैग्नीज। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? ये केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, सॉरी ये केमिकल पैरामीटर्स है, मतलब कि क्या क्या केमिकली उसमें प्रेजेंट हो सकता है वाटर में, जिसकी लिमिट आपको पता होनी चाहिए। So iron and manganese कितना है? Excess iron causes hardness, bad taste, discoloration, discoloration of clothes, and incineration in piles due to presence of centrosex. तो ये शायद मैं भी पहले भी इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। बट ये लास्ट वाला टर्म मैं आपको और क्लियर कर दूंगा ये क्या चीज़ है, मुझे ज़्यादा पता नहीं। बट इसमें क्या है? आयरन, हार्डनेस, बैड टेस्ट और डिस्कलोरेशन ऑफ क्लोथ्स है इसमें, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है, मतलब ये जो है इनक्रस्टेशन इन पाइप्स जो है आपका, बेसिकली दिस डील्स विद जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो जंक लग जाता है ना पाइप्स वगैरह में, ये उससे रिलेटेड है। इनक्रस्टेशन मतलब कि जो पाइप में आपने देखा होगा कि जंक लग जाता है और पाइप फिर उसका सड़ने लगता है, या फिर हम बोलते हैं ना कि जंक लग गया पाइप में, तो उसको इनक्रस्टेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिरेनोथ्रिक्स, ये कोई टर्म है, मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं जानता, बट ये जो भी है इसकी वजह से क्या हो रहा है? इनक्रस्टेशन हो रहा है पाइप में, ये इसमें मेंशन है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से है? ड्यू टू एक्सेस आयरन, ठीक है। इट शुड नॉट बी मोर देन 0.3 mg पर लीटर। तो अब ये लिमिट है दैट इट शुड नॉट एक्सीड 0.3 mg पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर। किसी भी रीजन से 0.3 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में आयरन, ठीक है। एक्सेस प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आल्सो कॉजेस डिस्कलरेशन ऑफ क्लोथ्स एंड इट्स परमिसिबल लिमिट इज 0.05 mg पर लीटर। तो आयरन और मैग्नीज दोनों ही मतलब लिमिटेड होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 0.3 mg से ज्यादा आयरन नहीं होना चाहिए, 0.05 mg लीटर से ज्यादा मैग्नीज नहीं होना चाहिए। दोनों से डिस्कलरेशन ऑफ क्लोथ हो सकता है और
इसकी परमिसिबल लिमिट है 0.05 mg per liter. So iron and manganese are generally found in water which is deficient in oxygen, such as groundwater. तो जहाँ पर ऑक्सीजन की ज्यादा कमी होती है वहां पर ज्यादा रस्टिंग या फिर आयरन और मैग्नीशियम फॉर्म होने की चांसेस रहती है, ठीक है। तो उन जगहों में आपका ज्यादा आयरन और मैग्नीज हो सकता है वाटर में, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन कम है, जैसे कि कोई ग्राउंड वाटर है ना, जो ग्राउंड वाटर की टेबल से नीचे जो पानी है वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकता है कम हो, तो उस वाटर में आयरन और मैग्नीज मिलने की संभावना ज्यादा है। उसी तरीके से नेक्स्ट मेटल आपका आता है कॉपर। तो बेसिकली ये दीज आयरन मैंगनीज कॉपर ये सब क्या है, मेटल्स है, हार्मफुल मेटल्स है, नहीं होने चाहिए वाटर में, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो कॉपर में लिखा है इट्स एक्सेस प्रेजेंस अफेक्ट्स लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। कॉपर क्या करता है आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। If copper sulfate is more than 250 mg per liter, then it may cause laxative effect. And the permissible limit of copper is from 0.05 to 1.5 mg per liter. And the permissible limit for sulfur is 20 mg per liter. So basically क्या है, जो आपको कॉपर सल्फेट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, तो ये 250 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इट्स परमिसिबल लिमिट ऑफ कॉपर, कभी भी वाटर में कॉपर शुड नॉट बी मोर देन 0.05 to 0.15 mg पर लीटर। तो कॉपर बेसिकली जो आपने देखा होगा कॉपर की बॉटल्स वगैरह भी आती हैं आजकल, है ना, तो वैसे तो बोला जाता है कि कॉपर होना चाहिए वाटर में, बट इसकी लिमिट देखिए आप कितना है, 0.05 से 0.15 तक का, इसके बीच में रहे तो ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो ठीक नहीं है। उसी तरीके से सल्फर भी 200 mg पर लीटर तक का परमिसिबल है इसमें। उसी तरीके से कुछ और टॉक्सिक मेटल्स आ जाते हैं, जैसे कि आर्सेनिक है, बेरियम है, कैडमियम है, क्रोमियम, लेड, मरकरी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर ये वाटर में हो तो मतलब आपकी डेथ भी हो सकती है, इतने इतने हार्मफुल है ना, बहुत टॉक्सिक है मेटल्स। सिल्वर है ना, टॉक्सिक एंड हजार्डियस, तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक एंड हजार्डियस मेटल की उसमें कैटेगरी में आते हैं। दीज एंटर इन ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड चेन। तो ये कैसे भी आ सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि ये पानी के थ्रू आए, मतलब मान लीजिए कि फिश है, आपने फिश को कंज्यूम कर लिया, फिश के अंदर मरकरी थी तो उसके थ्रू भी आ सकता है आपके उसमें, है ना, तो फूड चेन के थ्रू आ सकता है। तो इस तरीके से वाटर से आपको टॉक्सिक मेटल्स आपकी बॉडी में आ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें से क्या लिखा है, साइनाइड इज पॉइजनस एंड शुड नॉट बी मोर देन 0.2 mg पर लीटर। तो साइनाइड का अपना नाम बहुत पॉपुलर है, सुना होगा, तो ये इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए पानी में, और बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, डेथ हो जाती है इससे ज्यादा होगा तो, ठीक है। उसी तरीके से फिनोलिक सब्सटेंसेस आर आल्सो हार्मफुल एंड शुड नॉट बी मोर देन 0.001 mg पर लीटर। देखिए कितनी छोटी सी क्वांटिटी है, 0.001 mg पर लीटर, मतलब 1000 पार्ट है उसका भी 1 लीटर में, है ना। तो ये सब बहुत टॉक्सिक मेटल्स हैं, नहीं ये तो बिल्कुल मतलब अलाउड होते ही नहीं है, होने ही नहीं चाहिए वाटर में। अगर ये सब प्रेजेंट है तो वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। उसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज में और क्या आ सकता है, डिजॉल्व गैसेस आ सकते हैं जो केमिकली प्रेजेंट रहते हैं वाटर में, जैसे कि मीथेन है, ठीक है, ठीक है। इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर एंड कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मीथेन हो सकती है, H2S हो सकती है, इट प्रोड्यूसेस बैड स्मेल, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होती है, बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है, अगर आती है। CO2 अगर होगा, डिजॉल्व होगा वाटर में, तो इट्स प्रेजेंट इंडिकेट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है वाटर में, दैट मींस कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है पानी के अंदर। इट इम्पार्ट्स बैड टेस्ट एंड मेक्स वाटर मोर करोसिव, इसकी वजह से ज्यादा करोजन होने के चांसेस हैं, और ये बहुत बैड टेस्ट प्रोवाइड करता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वाटर। बट अगर ऑक्सीजन है आपके वाटर में, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ वाटर स्पीशीज, ठीक है। तो फिश और एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, वाटर स्पीशीज के लिए बहुत जरूरी हो जाती है O2। एंड इन नो केस शुड बी लेस देन 4 mg पर लीटर, एज डिस्कस्ड अर्लियर, मैंने बताया था 4 mg पर लीटर से कम कभी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की परमिसिबल लिमिट कितनी है, तो इट इज 4 mg पर लीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कारण से। एक्वेटिक मतलब एक्वेटिक स्पीशीज या वाटर स्पीशीज जो है उनके लिए उनको अफेक्ट कर सकती है, इट गोज लेस देन 4 mg पर लीटर। सो इसकी लिमिट कितनी है, 4 mg पर लीटर। ऑर्गेनिक्स में आपको बेसिकली 2 टाइप के आते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फास्फोरस, ये
ऑर्गेनिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स मैटर आर ऑक्सीडाइज्ड एज फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक कर सकते हैं और उनको कंज्यूम कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं फूड के फॉर्म में, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेड कर जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल, सच एज स्टार्च, फैट, प्रोटीन्स, अल्कोहल, एसिड्स, एल्डिहाइड्स, ईस्टर्स। तो ये सब कुछ, ये सारे के सारे कंपाउंड्स आते हैं, किसमें आते हैं, बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ डिसॉल्व organics is either through oxidation process or through reduction process. So oxidation reduction process के through dissolved organics होते हैं, ठीक है। And oxidation may be aerobic or anaerobic. तो एरोबिक आप जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है, उसको बोलेंगे एनारोबिक। एरोबिक मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। So usually aerobic reactions gives stable products and the amount of oxygen consumed during microbial utilization is called BOD। तो ये important term है, जब हम लोग वेस्ट वाटर सप्लाई पढ़ेंगे तो BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। तो ये हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। ये बेसिकली क्या इंडिकेट करती है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए हमें, ये ऑक्सीजन डिमांड है, ओडी मतलब ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल मतलब कि बायोलॉजिकली किसी भी मैटर को डिग्रेड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो हमारा बीओडी बताता है, राइट। तो बीओडी आगे चल के हम लोग, ये पूरी की पूरी एक बहुत बड़ा पार्ट है बीओडी का, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, बट वो सब आपका ज्यादातर बीओडी उसमें आता है आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में, वाटर इंजीनियरिंग में थोड़ा कम होता है। सो बीओडी इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी नील। तो बीओडी अगर, वैसे तो अगर आप देखोगे बीओडी जो है ड्रिंकिंग वाटर में होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब, ऑक्सीजन डिमांड मतलब क्या है कि किसी भी मैटर को बायोडिग्रेड होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा लेक्स में या फिर स्विमिंग पूल्स में, स्विमिंग पूल में तो ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे कोई लेक्स या पॉन्ड्स में आपने देखा होगा, नैनीताल में मैंने देखा है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलती रहती है पानी में, है ना। हम उसमें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, मतलब कि पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो मैटर है वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की डिमांड है, उसको हम फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे तो ड्रिंकिंग वाटर में बीओडी नील होनी चाहिए, लेकिन अगर वेस्ट वाटर है तो उसमें कुछ बीओडी परमिट होती है, जिसको आप डिस्पोज कर सकते हैं रिवर में, ठीक है। उससे अगर ज्यादा बीओडी होगी तो आपको अलाउड नहीं होता डिस्पोज करना। तो ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। और देख लीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, जो आपके फूड में या फिर जो फूड चेन की वजह से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो ब्रेक नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो ये क्या हो सकते हैं, टेनिक एसिड, और क्या, सेल्यूलोज है, फिनॉल्स है, डिटर्जेंट कंपाउंड्स हैं, आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, ठीक है। तो ये सब आपके इसमें आएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल में, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिग्रेड नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और ये होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इट इज अ मेजर ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। तो इसमें बीओडी में तो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स का पता लगा सकते हो कितने प्रेजेंट हैं। ये सीओडी टेस्ट जो होता है, इससे आप बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों पता लगा सकते हो कितने प्रेजेंट है। Hence, non-biodegradable organics are represented by COD और BOD ultimate और COD और TOC, ठीक है। ये आप BOD COD ये आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे इसको। तो बस ये जान लीजिए BOD जो होता है ये बायोलॉजिकल बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है, का को नापने के लिए होता है कितना बायोडिग्रेडेबल मैटर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए COD होता है। तो इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों निकल आते हैं COD। केमिकली हमने इसमें कुछ केमिकल्स ऐड करना पड़ता है, तो सीओडी इसलिए बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये थोड़ा बहुत चीजें हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं ना। तो टाइप ऑफ एक्वेटिक प्लांट कौन कौन से हैं, है ना, स्पेमोफाइटा, वो ये वाटर वीड्स जिसे हम बोलते हैं, बायरोफाइटा, मॉसेस, हेटेरोफाइटा, फर्न्स हो गई, और आपके थैलोफाइटा हो गई, एल्गी वगैरह, है ना, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो वाले प्लांट्स आते हैं। तो ये बेसिकली कौन से एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी क्या बोलेंगे इसको कि
मतलब ये प्रॉपर्टीज में वाटर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकती है सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब कुछ वाटर में प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स भी प्रेजेंट होते हैं पानी में, वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो वर्स्टेब्राटा ये फिश और एम्फीबियंस हो गए, मोलस्का ये हो गए स्नेक, फॉक्स और क्या है एंथ्रोपोडा, इंसेक्ट्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, आपके कई तरीके के वॉर्म्स हैं, मेटोजोआ, प्रोटोजोआ, ये सब कुछ आपके वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ हो गए आपके, और हिस्टोरिका ये आपको हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस में। तो ये क्या है, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये भी बहुत छोटे छोटे, मतलब ये आपके माइक्रोस्कोपिक भी हैं कुछ इनमें से, अधिकतर माइक्रोस्कोपिक है। तो ये आप देखोगे तो प्रोटोजोआ और ये मेटोजोआ ये सब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख पाते हो कि वाटर में ये स्मॉल ऑर्गेनिक एनिमल्स भी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ आएंगे किसमें, ये आएंगे सब आपके एक्वेटिक प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब आपके आएंगे बायोलॉजिकल उसमें, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बायोलॉजिकल में ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं इसमें, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। इसमें बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, these microorganisms, those microorganisms which are harmful for human and animal are called pathogens। मैंने बताया था जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं जो हार्मफुल होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पैथोजेंस, ठीक है। और नॉन पैथोजेंस होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते। सो दीज आर पैथोजेंस, दीज आर कैपेबल ऑफ मतलब दीज आर कैपेबल ऑफ इंजेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू ह्यूमन बीइंग। तो ये सब क्या कर सकते हैं, आपके इन्फेक्ट कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज को, तो इसलिए इसको बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। They are not nature to organic system but usually requires an animal host for their growth and reproduction। तो ये मतलब डायरेक्टली नहीं होते, बट इसको कोई एनिमल होस्ट चाहिए होता है जिसमें ये क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, ग्रोथ होती है और इनका ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड एयर, तो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं वाटर एंड एयर के थ्रू। The waterborne pathogens include bacteria, viruses, protozoa and helminthes, ठीक है, हेलमिंथ्स। तो ये सब कुछ क्या है आपकी वाटर बॉर्न पैथोजेंस है जो पानी में होते हैं बेसिकली। वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, ये आप सब लोग ज्यादातर सुने होंगे, आपने कई बैक्टीरिया के नाम भी सुने होंगे, आगे चल के देखेंगे हम लोग। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स जो होते हैं ये वाटर बॉर्न पैथोजेंस है। पैथोजेंस मतलब कि हार्मफुल होते हैं, ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। नॉन पैथोजेन मतलब जो हार्मफुल नहीं होते। तब जैसे वाटर में आपका बैक्टीरिया है, जैसे यूजुअली दिस में बी रॉड शेप बट में आल्सो बी स्पेरिकल और स्पाइरल। तो बैक्टीरिया बेसिकली आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ही आप इसको देख सकते हो, है ना। तो रॉड शेप के होते हैं, स्पेरिकल और स्पाइरल शेप के भी आपको बैक्टीरिया मिलते हैं वाटर में। These are single cell microorganisms which are simplest form of life। तो ये सब आपको पता है, बैक्टीरिया मतलब सिंगल सेल माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है लाइफ का। दे सिंथेसाइज फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरनमेंट। The rod-shaped bacteria are called bacillite, whereas spherical-shaped are called cocci, and spiral-shaped are called spiralia। तो ये सब इनके नाम हैं जो अलग अलग इनके शेप के बेसिस पे नाम है, ठीक है। अब इनके नाम पे कुछ टेस्ट भी हैं, वो आगे चल के मैं आपको एक बार बताऊंगा, इसी आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो बेसिलाइट और कोकी हैं ये सब की किस में आते हैं। सो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, जो वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, कौन कौन से हैं। टाइफाइड हो गया आपका, है ना, सैमोनेला टाइफाइड की वजह से होता है, क्लोरेरा। ये क्वेश्चंस जो हैं ये जीएस वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सा वाटरबॉर्न डिजीजेज हैं और जो बैक्टीरियाज हैं वो किस टाइप की डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो आप बताओगे कि वाटर में बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड हो सकता है, क्लोरेरा हो सकता है, डायसेंट्री हो सकती है, लेप्टोसाइरोसिस हो सकता है, और किस किस टाइप के बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। ये वाइब्रोकोमा भी बोलते हैं इसको, सीगा बैसिलस डायसेंट्री जिसकी वजह से होती है, लिपोसाइरोसिस, या आपको लेप्टोस्पिरिन मतलब ये वेल्थ डिजीज भी बोलते हैं इसको, लेप्टोस्पायरे। ये सब बैक्टीरिया के नाम है, अगर आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से वाटरबॉर्न होते हैं वायरस। वायरस क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर विच इज नोन टू कंटेन ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर देयर ओन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गए वायरस। दीज कैन बी सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप्स।
ये मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से वायरस की वजह से डिजीज कौन कौन से होते हैं? पोलियो, जॉन्डिस, डायरिया, ये सब वाटर में है जो वायरस होते हैं उनके वजह से होते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं और कौन सी चीजें वायरस की वजह से होती हैं वाटर में। ठीक है, सो पोलियो जो है पोलियो वायरस की वजह से होता है, जॉन्डिस जो होता है हेपेटाइटिस की वजह से होता है, डायरिया सीटो पैथोजन की वजह से होता है। तो ये सारे वायरस के नाम है और ये उनसे रिलेटेड डिजीज हैं जो हो सकते हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस आपने ये कहा, काफी कॉमन नाम है, आप लोगों ने सुने भी होंगे कि ये डिजीज। बैक्टीरिया वायरस के बाद वैसे आता है प्रोटोजोआ। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which have complex function activities as compared to bacteria and viruses. ठीक है, protozoa injection is generally characterized by gastrointestinal disorder. Gastrointestinal disorder के वजह में होता है। ठीक है, if drinking water is contaminated by sewage then protozoa infection is common. तो ये जो ड्रिंकिंग वाटर में कभी कभी क्या होता है कि सीवेज का पानी आके मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है उसमें, उसमें आपका प्रोटोजोआ उसमें आ सकता है और ये आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर दे सकता है। तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं इसमें? डेसेंट्री हो सकती है, बेसिकली एमओवी डेसेंट्री हो सकती है, और ये गियार्डाइसिस करके एक बीमारी है वो भी आपको हो सकती है। कौन कौन से प्रोटोजोआ हैं इसमें? एंटामीबा हिस्टोरिका जिससे आपकी डिसेंट्री हो सकती है, और ये जो है गियार्डाइसिस, इसमें आपको गियार्डाइसिया लैम्बेलिया, थोड़े टिपिकल टर्म होते हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं, बट आप ध्यान में रख सकते हैं इनको। ठीक है, कभी जैसे उसमें आ गया आपको क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर ये चीजें आ गए, सो इट इज इजियर टू रिमेम्बर द नेम। अगर आप इनको एक बार पढ़ के भी जाएंगे तो ये मतलब आपको कभी कभी क्लिक कर जाता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये वायरस थे, ये बैक्टीरियाज थे, और ये प्रोटोजोआ में आती हैं। उसी तरीके से लास्ट आपका आता है हेलमिंथिन। These are also called parasitic worms. तो ये parasitic worms भी इनको बोलते हैं। It involves two or more animal hosts, one of which may be human or animal, which will contain helminth. तो ये बेसिकली ह्यूमन और एनिमल के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। इसका होस्ट जो है वो एक या एक से ज्यादा होस्ट हो सकते हैं इसके। ठीक है, और इसमें कौन सी डिजीज होती है? ड्रैकोंटियासिस डिजीज, और ये इसका हेलमिंथ जो है उसका नाम है ये। ठीक है, ड्रैक्यूलिसिस मेंडिसिस मेडिनिसिस है ना, बहुत टिपिकल नाम है, बट यू कैन जस्ट once you see them and you can just recall whenever it is asked. तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आपको मिल जाते हैं क्वेश्चंस। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि ये पैथोजेंस जो हैं हम लोग इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब पैथोजेंस मतलब कि मैंने आपको बताया था पैथोजेनिक, मैंने बताया था जो हार्मफुल है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो उनको बोलते हैं पैथोजेंस। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे कि हमारे कितने पैथोजेंस प्रेजेंट है वाटर में? अभी बहुत जरूरी हो जाता है कि पैथोजेनिक, अगर वाटर पैथोजेनिक है तो आपको फिर कई सारे डिजीज हो सकते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम वाटर में पैथोजेंस का कैसे पता लगाएं। ठीक है, ये सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आ रही है, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स आ रहे हैं वाटर के। Indirectly, pathogens are determined by measurement of chloriforms. तो chloriforms के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितने pathogens present है। Since chloriforms survive longer than survival of pathogens, hence if drinking water there is no presence of chloriforms, then there will be no presence of pathogens. तो आप chloriforms का पता लगा लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि pathogens हैं कि नहीं है, क्योंकि pathogens क्या होते हैं, जो क्लोरीफॉर्म्स होते हैं वो ज्यादा टाइम सर्वाइव करते हैं पैथोजेन से। अगर पानी में आपका क्लोरीफॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि उसमें पैथोजेंस भी होंगे ही होंगे। ठीक है, और अगर आपके उसमें पानी में अगर पानी में आपका क्लोरीफॉर्म्स नहीं प्रेजेंट है तो मतलब इसका मतलब है कि पैथोजेंस नहीं होंगे, क्योंकि अगर क्लोरीफॉर्म नहीं है तो पैथोजेंस उसमें नहीं हो सकते। तो ये डायरेक्टली किसका टेस्ट है? इनडायरेक्टली किसका टेस्ट है? क्लोरीफॉर्म का टेस्ट है। आप क्लोरीफॉर्म्स का पता लगा लो, वाटर में कितने क्लोरीफॉर्म्स, उसको ऐसे आपको पता चलेंगे कितने पैथोजेंस या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में प्रेजेंट है। So chloriforms are harmless aerobic microorganisms which are found in intestine of cell worms, blooded animals.
सो क्लोरीफॉर्म कहाँ पर बेसिकली पाए जाते हैं? विच आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जितने वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लोरीफॉर्म्स। So common chloroforms are B. coli and E. coli. अब ये दो टेस्ट भी होते हैं, बी कोलाई और ई कोलाई के टेस्ट होते हैं। अगर आप इनका क्लस्टर पता कर लेंगे कि कितने इनकी कॉलोनी है वाटर में, तो सब पता लगा सकते हैं कि कितना वाटर में क्लोरीफॉर्म्स है। अगर क्लोरीफॉर्म प्रेजेंट है दैट मीन्स कि उसमें पैथोजेंस रहे होंगे, ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे। तो इस तरीके के टेस्ट आप कर सकते हैं। तो कौन कौन सी मेथड है? मेथड्स टू मेजर क्लोरीफॉर्म, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक है, एक टेस्ट ट्यूब मेथड है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर बोलते हैं, एमपीएन नंबर मेथड बोलते हैं, एमपीएन मेथड, और एक क्लोरीफॉर्म इंडेक्स। ये 3 टेस्ट हैं और हम लोग शॉर्टनेस को डिस्कस कर लेते हैं। चाहो तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, बट इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ना। ये टेस्ट के नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, टेस्ट ट्यूब मेथड, ये मोस्ट प्रोबेबल नंबर, एमपीएन नंबर बोलते हैं इसको, एमपीएन मेथड बोलते हैं, और क्लोरीफॉर्म इंडेक्स। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में क्या होता है? मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक जो आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू फिल्टर किया जाता है ना। इट इज कॉमनली यूज्ड बाय एनवायरमेंटल इंजीनियर टू फाइंड क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया। जो इतने भी क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। इन दिस टेस्ट वाटर सैंपल इज फिल्टर्ड थ्रू अ मेम्ब्रेन, the process of which do not exceed 0. The pores of which do not exceed 0.45 micrometer. तो इतने माइक्रो, ये जो इतना साइज है 0.45 माइक्रोमीटर्स, इससे छोटे पोर्स होते हैं इसमें थ्रू हम जो इसका पोर साइज है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है? फिल्टर है। क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया आर रिटेन्ड ऑन द फिल्टर। जो क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं वो रिटेन हो रुक जाते हैं फिल्टर पे। एंड देन बैक्टीरिया प्लेस्ड ऑन सिलेक्टिव मीडियम कॉल्ड एम एंडोस मीडियम। तो ये एम एंडोस मीडियम जो है, ये इस पे हम लोग फिर उस बैक्टीरिया को प्लेस करते हैं, which promotes growth of only chloroforms and not other species। तो सिर्फ उसमें क्लोरीफॉर्म्स की ग्रोथ होती है। तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितने क्लोरीफॉर्म्स प्रेजेंट हैं। यूजुअली आफ्टर 24 आवर एट सुटेबल इंक्यूबेशन टेम्परेचर, इंक्यूबेटर में रखा जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 24 आवर्स के लिए। क्लोरीफॉर्म्स ग्लो इनटू विजिबल साइज। अब ये देखिए क्लोरीफॉर्म्स जो होते हैं वो आपके विजिबल साइज में हो जाते हैं, विच कैन बी काउंटेड मैनुअली। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने क्लोरीफॉर्म्स प्रेजेंट है, और उस क्लोरीफॉर्म से आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि कितना आपका वाटर में पैथोजेंस प्रेजेंट है। एंड रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ क्लोरीफॉर्म्स पर 100 ml ऑफ वाटर। मतलब हर एक 100 वाटर के ml के सैंपल में कितने नंबर ऑफ क्लोरीफॉर्म्स थे वो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा वाटर कितना ज्यादा पैथोजेनिक था। फॉर ड्रिंकिंग वाटर नॉट मोर देन 1 क्लोरीफॉर्म कॉलोनी शुड बी प्रेजेंट एट पर 100 ml ऑफ वाटर। तो 100 ml ऑफ वाटर में 1 क्लोरीफॉर्म कॉलोनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होती है, 1 क्लोरीफॉर्म कॉलोनी से ज्यादा आपको मिलती है, तो वो वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो ज्यादा पैथोजेनिक है। मतलब एक तो ये टेस्ट हो गया आपका मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। दूसरा आपका आता है टेस्ट ट्यूब मेथड। ये टेस्ट ट्यूब मेथड में क्या होता है? इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इसको प्रिपेयर करते हैं। द वाटर सैंपल इज मिक्स्ड विद लैक्टोज एंड सैंपल इज इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 आवर्स। तो फॉर 48 आवर्स। सो सैंपल को इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस में 48 आवर्स तक का इसको रखना है। सैंपल इज केप्ट इन 15 ट्यूब्स, 5 ट्यूब ऑफ 10 ml, 5 होती है 1 ml की, और अगली 5 होती है 0.1 ml की। तो 15 ट्यूब्स हैं अलग अलग साइज की हैं। वो कितना है? 10 ml की है 5 है 1 ml की, और 5 0.1 ml की। और आफ्टर 48 आवर्स टेस्ट ट्यूब आर टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड एसिड्स, ठीक है, which indicates the presence of chloroform bacteria। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होती है और एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया था उसमें, और इस क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना पैथोजेनिक वाटर था। एंड रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड विद स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल टेबल गिवन बाय मार्केडिस। तो जो मार्केडिस है उनके थ्रू एक टेबल दिया गया है, इससे आप मोस्ट प्रोबेबल नंबर निकाल सकते हो, ठीक है, which can be used to find the most probable number। ये देखो लिखा हुआ है which can be used to find the most probable number। तो एक टेबल गिवन है, इससे आप लोग मोस्ट प्रोबेबल नंबर निकाल सकते हो फ्रॉम द, इसमें आपका ये आएगा CO2 और एसिड्स के रिलेशन में आप निकाल सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर कितना होगा। सो जैसे ई कोलाई और बी कोलाई मैंने आपको बताया था, तो उसी तरीके से है ये बी कोलाई पर 100 ml ऑफ वाटर, मोस्ट प्रोबेबल नंबर इन बी कोलाई पर 100 ml ऑफ वाटर। मतलब इसको भी 100 ml ऑफ वाटर में देखते हैं कि कितने बी कोलाई प्रेजेंट हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबल नंबर कहलाता है। सो मोस्ट प्रोबेबल नंबर रिप्रेजेंट द बैक्टीरिया डेंसिटी
विच इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट, तो कितनी बैक्टीरियल डेंसिटी है वाटर में वो आपको मोस्ट प्रोबेबल नंबर से फाइंड आउट हो सकता है। तो ये कुछ एक एग्जांपल है, आप देख लीजिए। यहाँ मैंने मेंशन किया गया 2004 में पूछा गया, देखिए क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा था आपको कि ऐसी चीज पूछ ली जाती है। तो ये किस पर बेस्ड है टेस्ट? एमपीएन, मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब मेथड टेस्ट। इसमें देखिए 3 सैंपल साइज मैंने बताए थे, एक 5 होंगे, ये जो सैंपल साइज है 10 ml का है, 1 ml का और 0.1 ml का है। और नंबर ऑफ टेस्ट कितने किए हैं? 4 टेस्ट किए गए 10 ml पे, 2 टेस्ट हैं 1 ml पे, 1 टेस्ट है 0.1 ml पे। नंबर ऑफ नेगेटिव टेस्ट मार्क कर लेंगे आप कितने हैं। नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब मैंने बताया था 5 10 ml के होते हैं, 5 1 ml के होते हैं, 5 0.1 ml के होते हैं। तो बेसिकली आप ये कॉम्बिनेशन को चेक करते हो, नंबर ऑफ टेस्ट की कॉम्बिनेशन को। ये कॉम्बिनेशन क्या है? 4 to 1 का, द टेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 4 to 1 रेफरिंग टू मर्काडिस टेबल, एमपीएन इज 26 पर 100 ml पर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस टेबल से, मर्काडिस की टेबल से आप चेक करोगे इस कॉम्बिनेशन को 4 to 1। तो 4 to 1 वाला जो होगा वो बता रहा है कि 26 मोस्ट प्रोबेबल नंबर कितना है? 26 पर 100 ml पर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका पर 100 ml ऑफ वाटर में कितने बी कोलाई प्रेजेंट है ना, कितने बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सो ये एक किस्म का आपका टेस्ट है, और ये इस तरीके का पूछा गया है आपको, गेट में भी एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो भी हम लोगों ने आज देखा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। So I'll just come back to the screen. ठीक है, तो अभी ये जो था जिसका हम लोगों ने पार्ट सेकंड देखा, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग इसको पहले डिस्कस कर चुके थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम लोगों ने देखी कुछ, और हम लोगों ने कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है। बेसिकली जितने भी हमारे बायोलॉजिकली जितने बैक्टीरिया हैं, जितने पैथोजेंस हैं, बेसिकली वो हम लोगों ने आज देखे कि कैसे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना पैथोजेनिक है वाटर, ये कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाली टॉपिक जो है ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट था, नाउ यू हैव स्लाइटली मतलब एक आइडिया आपको आ गया कि किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली वाटर में प्रेजेंट हो सकती हैं। सो यू आर नाउ एक्वेंटेड विद ऑल दीज टर्म्स, राइट, कि क्या प्रोटोजोआ होता है, क्या हेलमिंथ होता है, और उसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कलर होता है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कितना सस्पेंडेड सॉलिड्स होने चाहिए, कितना टीडीएस होना चाहिए, है ना, डिसॉल्व सॉलिड्स में पीएच कितना रहना चाहिए, ये आपको थोड़ा एक आइडिया हो गया है। और नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो उसका क्या मतलब होता है, क्लोराइड अगर प्रेजेंट हो, अमोनिया प्रेजेंट हो, तो इन सबको वाटर में क्या रिलेशन है, क्या चीज है। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलती है कि वाटर की क्वालिटी किस तरीके की होनी चाहिए, है ना। और हमें जब भी वाटर सप्लाई करना है किसी भी टाउन को, सो उस वाटर को सप्लाई करने से पहले ये सारी टेस्टिंग की जाती है, ताकि आपको पता चले कि ये वाले टेस्ट हम लोग करें, आपको ये आइडिया लगेगा कि हम लोगों को वाटर जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, और हमें किस टाइप की क्वालिटी रिक्वायर्ड है, क्या हम वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या जितना हम लोगों को रिक्वायर्ड है क्वालिटी, उतनी रिक्वायर्ड क्वालिटी हम दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत खराब पानी सप्लाई कर रहे हैं, या फिर ऐसा पानी सप्लाई कर रहे हैं कि जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ अफेक्ट हो जाए, ठीक है। ये सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, जिससे कि वाटर क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। तो ये वाली चीजें हैं आपकी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और जहां तक अभी हमने देख लिया अपने सिलेबस में, हम लोगों ने वाटर डिमांड निकालना सीखा था, पॉपुलेशन को फोकस करना सीख लिया हम लोगों ने इनटेक स्ट्रक्चर्स देख लिए कि हम लोगों को सोर्स ऑफ वाटर पता चले तो हम इनटेक कैसे लगाएंगे, इनटेक से हम पानी लेंगे, है ना। उस पानी को अब हम लोगों को नेक्स्ट यूनिट में हम लोग ये देखेंगे कि जो उस पानी को हम लोगों को हम लोग कैसे लो कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो उस मतलब हम लोग उस पानी को हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उस पानी को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे कंड्यूट्स के थ्रू। कंड्यूट्स क्या होते हैं? पाइपलाइंस होती है, ठीक है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन दैट। हम लोग उसमें ये पढ़ेंगे कि क्या कैसे पाइप के साइज हम लोग डिसाइड करते हैं, कौन कौन से प्रेशर्स हम लोग टेस्ट, ये हम लोग कौन कौन से प्रेशर्स वाटर के जो है पाइप में लगते हैं वो टेस्ट करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि
वाटर पाइपलाइन की टेस्टिंग कैसे की जाती है ना, कि कहीं पर लीकेज तो नहीं है या फिर कहीं पर कोई कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, सो प्रोबेबली आपकी कल होगी क्लास, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पोर्शन को कवर कर लें, राइट। फिर उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो जैसे वाटर आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रीटमेंट यूनिट तक कैसे पहुंचाना है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे वाटर को ट्रीट किया जाता है, और वाटर ट्रीट करने के बाद हम लोग देखेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, घर घर तक का पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो यही बेसिकली हम लोगों की इसमें वाटर में रहेगा। फिर थोड़ा बहुत वेस्ट वाटर का है, वेस्ट वाटर तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ना है, बट देन तब तक हम लोग कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया हम लोग ले लेंगे वेस्ट वाटर को भी। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकली भी हम लोग चल रहे हैं अभी, तो उसी क्रोनोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वाटर क्वालिटी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट विल बी ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ वाटर, कैसे वाटर को हम ट्रांसमिट करेंगे टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब आपके सोर्स से लेके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक कैसे पानी जाएगा, ये लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी आपकी कल होगी, टाइम आप लोगों का एज पर टाइम टेबल चलेगा। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। I'll just stop recording this session. आई होप आप लोगों ने अटेंडेंस अपनी मार्क कर दी होगी, है ना। जिसने नहीं की वो भी कर देना। फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स ये सेशन अभी ऑन है, सो यू कैन जस्ट मार्क योर अटेंडेंस। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. You're welcome.